السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ نوا دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے بائی لائبہ ناصر کی ایپیسوڈ نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی بال سلجھا رہی تھی، جو اس کی جلدی پر سلجھنے کی بجائے مزید الجھ رہے تھے۔ وہ ٹاول سے گیلے بال رگڑتا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ڈریسنگ کے آگے اسے کھڑے دیکھ کر اطمینان سے اس کے پیچھے کھڑا ہوا، جو حیران سی ڈریسنگ پر رکھی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی ضرورت کی ہر چیز سیٹ کر رکھی تھی، اس کا وارڈروب، اس کی باقی چیزیں، ضرورت کی ہر چیز اس نے کب لی تھی۔ وہ حیران سی ہر چیز پر نظریں ڈالتی سوچ رہی تھی، یہ ساری چیزیں میری پسند کی ہیں اور میں نے ہی آپ کے لیے لی ہیں۔ اس کے الجھے بالوں میں انگلی پھنساتا ہوا اس کی مشکل آسان کرتا ہوا بولا، میرے پاس میری چیزیں ہیں میرے کمرے میں، اب سے آپ میری ذمہ داری ہیں شیری۔ آپ کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گی تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہی غیر محسوس انداز میں کچھ دور ہوتی دوبارہ اپنے بالوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا دور ہونا اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ لب کھینچ کر ضبط کر گیا۔ ان سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ وہ اسے یوں ہلکا نہ ہو کر زور زور سے بال جھٹکتے دیکھ سختی سے بولا۔ نہیں ہو رہے۔ کنگھی زور سے ڈریس کی وہ پٹکتی ہوئی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زوروں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ حیران پریشان سا اپنے ایک دن کی دلہن کو دیکھ رہا تھا جو بال نہ سلجھنے پر بھی روتی تھی۔ شیریں، کیا ہوا یار، کیوں رو رہی ہے؟ نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں نا، خوش ہو جانے دے پہلے۔ وہ فکر مندی سے بولتا اس کے سامنے بیٹھا، گلابی جوڑے میں نم نم سا وجود لیے وہ خود بھی گلابی ہو رہی تھی۔ آپ اتنا روئیں گی تو پاپا کو لگے گا میں نے آپ پر پتہ نہیں کتنے ظلم کیے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی میری کلاس لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ مجھے مشکوک بنا رہی ہیں شیریں۔ اس کی سوجی سوجی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بے بس سا ہو رہا تھا۔ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے گال پر ہاتھ کے پوچھتے رکھتا وہ تشویش سے بولا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار ہو رہا ہے آپ کو؟ بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ چلی اٹھیں، گیلے بال سنوارتا سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس شیریں۔ اس کے الجھنے پر وہ نرمی سے بولا، نہیں، اس باکس میں ہے بخار کی میڈیسن، یہ اکثر ہو جاتا ہے، میں لے لوں گی۔ وہ سر جھکا ایک بار پھر شرمندہ سا ہوئی۔ بھلا شادی کی پہلی صبح کون ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ اس کی سماعت سے اس کی دھیمی آواز ٹکرائی زبان نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بالوں کے ساتھ جنگ لڑتی لب کاٹ رہی تھی۔ ایسے کسی بات کی وہ امید تو نہیں کر رہا تھا اسے۔ کہاں جانا ہے آپ نے شادی کی پہلی صبح؟ دھیرے سے اسے قریب کرتے ہوئے سنجیدہ سا بول رہا تھا، لیکن آنکھیں لہجہ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سہم کر جلدی سے بولی۔ آج کل جس انداز میں وہ اس سے مخاطب ہو رہا تھا، اس کا ڈرنا سہم جانا فطری تھا۔ اس سے تو بیلا بھی اپنے مزاج کے برعکس نرمی سے بات کرتی تھی۔ اس نے بالا سختی کب دیکھی تھی؟ زوار کا سنجیدہ لہجہ بھی اسے اچھا خاصا خوفزدہ کر رہا تھا۔ جھوٹ بھی کہتی ہیں آپ؟ وہاں کے چھوٹی کی سے گردہ گرفت مضبوط کر گیا۔ میں کہہ رہی تھی شادی کی پہلی صبح ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے نا؟ وہاں کے میز کا اعتراف کر رہی تھی وہ پرشوق نظر سے تکتا مسکراہٹ دبا گیا۔ میں پوچھ رہا تھا کہاں جاتے ہیں آپ، مجھے بتائیں، میں لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کی ناک سے اپنی پیشانی ٹکراتا ہوا اسی کے انداز میں بولا، ماما کے پاس جاؤں گی۔ وہ گہری سانسیں لیتی رونا سی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ نیچے جائیں گے آپ؟ صرف آج نہیں، روز صبح میرے ساتھ ناشتے پر جایا کریں گی، رات کا کھانا بھی میرے ساتھ کھائیں گی جس طرح پہلے کھاتی تھی۔ آپ کا سارا کام بیلا کر رہی ہے آج کل، اچھی بات ہے، لیکن میں کافی آپ کے ہاتھ سے بنی پیوں گا۔ میرے کپڑے صبح آپ نکالا کریں گی اور ہر ڈریس کی میچ سے آپ کے کپڑے بھی ہیں تو آپ بھی وہی پہنیں گی۔ آپ کے یہ بال کمر میں میرے سامنے کھلے ہونے چاہیے، لیکن کمرے سے باہر آپ انہیں چھپا کر نکلیں گے، بس اتنا ہی۔ آپ کا خیال تو میں رکھوں گا۔ تو اس کی ٹینشن نہیں ہے، اطمینان سے اس کی جان ہلکان کرتے اس کی ناک پر چٹکی بھر کر وہ اپنی ڈیمانڈز کی چھوٹی سی لسٹ اس کے گوش گزار کرتا۔ بغور اس کے تاثرات جانچ رہا تھا جو رونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نہیں کروں گی اتنا سب کچھ، وہ روتی اس کے سینے پر مکے برساتی ہوئی بولی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اپنا پابند کرنا چاہ رہا تھا۔ آنسو روانی سی آنکھوں سے رخسار پہ بہہ نکلے۔ آپ کو کرنا چاہیے۔ اپنے گوش سے اس کے پاس آتا وہ پرسکون لہجے میں بولا، نہیں تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ زور و شور سے نفی میں گردن ہلا کر اس نے پرزور احتجاج کیا۔ انداز خالصتاً ضدی تھا۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا وہ ضد نہیں کرتی، وہ تو سب کی آسانی سے بات مان جایا کرتی تھی۔
اس کے سامنے ہی اس کے الگ الگ روپ آشکار ہو رہے تھے۔ امپریسو، میری بیوی کا غصہ کرنا بھی آتا ہے، اس کی جانب جھکتا وہ شرارت سے بولا۔ اس کے یہ الگ الگ انداز مختلف روپ نظروں کو پا رہے تھے۔ میں بڑی ہوں، وہ جلدی سے اپنی احتیاطی تدبیر پر آئی۔ کتنا سکون ملتا تھا اس ایک جملے سے کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ جیسے اسے بتا رہی تھی اسے غصہ کرنا آتا ہے۔ اچھا، اپنی پرفیوم اس پر چھڑک کر اسے اپنی خوشبو میں مہکاتا۔ اس کی ناک کی نوک پر لب رکھتے ہوئے ہلکا سا ہنسا، جیسے کسی معصوم بچے کی بات پر محفوظ ہوا ہو۔ میں ہوں، وہ روانسی ہوتی اپنی بات پر پورا زور لگا رہی تھی۔ یار، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بھرنے والی ہلکی ہلکی نمی کو انگلیوں کے پوروں پر سمیٹ دی۔ وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ اسے خود سے کچھ دور کرتے اس نے سائڈ ڈراور سے ایک مخملی ڈبہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو پوری تیاری کیے بیٹھا تھا جیسے شادی پہلے ہی طے ہو۔ خود ہی باکس کھولتے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ مخملی کیس میں ہیرے کی نازک سی نوزبین پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ستائش ابھری۔ مجھے آپ کی ناک بہت پسند ہے۔ یہ میں نے بہت پہلے لے لی تھی آپ کے لیے، لیکن یہ میں اپنے نام پر آپ کی ناک میں سجی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں پسندیدگی بھاپتے وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس حد تک اس کے بارے میں سوچتا تھا، اسے نظر اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ پہن کر نہیں دکھائیں گی؟ وہ آئی دیتے لہجے میں بولا۔ تم دور ہو جاؤ گے تو پہن لوں گی۔ وہ لب کاٹتی ہوئی اشارے سے بولے تو وہ کہکا لگاتا کچھ دور ہوا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے تکتا اس کے پہننے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھیرے سے اپنی ناک میں سجاتے ہوئے اس کی جانب مڑی، جو بے خود سے اس کی جانب تک رہا تھا۔ وہ لونگ اس کی ناک میں سج سی گئی تھی۔ تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی دھیرے سے بولی۔ کچھ نہیں، وہ ضبط کرتا رخ پھیر گیا، ورنہ اس کی خواہش میں ڈلی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پگو، خبردار جو تم نے اسے جانے کا کہا۔ تم جانتے ہو ہم پروفیشنل کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں آ رہی ہوں نا، آج دیکھتی ہوں کیا مسائل ہے تم دونوں کے درمیان۔ وہ فون کان سے لگاتی سختی سے پگو کو ہدایت کر رہی تھی، جو آگے سے نہ جانے کتنی لمبی شکایت کی لسٹ لیے بیٹھا تھا۔ میرے بچے، آ رہی ہوں نا میں۔ بیلا باجی کے بچے، چپ کرو، اب نہیں لڑنا، اسے آ رہی ہوں میں۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا، وہ جھنجھلا کر کہتی فون رکھ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لیتی وہ قدم آگے بڑھاتی کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ نور ہیں بیلا، لیکن سب کے لیے منور نہیں ہو سکتی۔ وہ الفاظ اس کے دل پر گہرے چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس باکس کی جانب پلٹی۔ اس میں سے اسکن کلر کی ایک اسٹالر نکال کر بغور اس کا جائزہ لیتی شانے پر ڈال گئی۔ بلو جینس اور بلو کرتی پر وہ اسکن اسٹال اچھی لگ رہی تھی۔ یہ نور ہے؟ وہ ہاتھوں میں اسٹالر پکڑے نہ سمجھی سے بولی۔ اسے ذرا آپ کی سمجھ نہیں آئی تھی، ایک عام سی چیز کو وہ کیوں نور کہہ رہا تھا۔ کندھے جھٹکتی وہ اپنا تھیلے نما بیگ اٹھا کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ستر بیگم پرجوش سے ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ ساری چیزیں شینی کے پسند کی تھیں۔ ابراہیم چیئر پر بیٹھا شاید سب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لٹک رہا اسٹالر دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک پڑی تھی۔ حیران تو سترہ بیگم بھی تھیں۔ ابراہیم کو بے خودی سے بیلا کی جانب تکتے دیکھ کر ان کی سمجھ میں کچھ آ گیا تھا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ جو کام ان کی سختی نہیں کر سکی تھی، وہ ابراہیم کی محبت میں ہو گیا تھا۔ کندھے پر ہی صحیح، اس نے دوپٹہ تو لیا تھا۔ ایک شانے پر لٹکتا وہ اسٹالر کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اسے ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ شینی کے سلام کرنے پر وہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ نکھری نکھری سے شینی کو دیکھ کر سیدرا تو پرسکون ہو گئی تھی۔ بیلا نے زور سے اسے کھینچ کر پیار کیا۔ جتنا زیادہ وہ رات میں ڈری ہوئی تھی، ساری رات وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی ناک میں سجی وہ لونگ سب کو توجہ کھینچ رہی تھی۔ زوال مسکراتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ بیلا کو خفگی سے گھورتے سرخیوں میں گل رہی تھی۔ بیلا، خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ جوس کا گلاس رکھتی افضل ملک سے پیال لیتی کیفے کے لیے نکل رہی تھی، جب سدرا بیگم کی پکار پر اس کے بڑھتے قدم تھمے۔ یہاں آؤ، اسے اپنی جانب سوالے نظر سے تکتے ہوئے نرمی سے بولی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے نتن کے قریب آ گئی۔ حیران تو وہاں بیٹھا شخص تھا۔ اچھی لگ رہی ہے اس میں، بس اسے اس طرح خود پر کور کر لو۔ اس کے نزدیک آنے پر اس کا اسٹالر شانے سے اتار کر مفلر کی طرح اس کے گلے میں ڈال دی۔ دونوں جانب سے برابر کرتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو اتنے میں تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں میں حسرت لینے تک رہی تھی۔ آج ذرا سی نرمی سے وہ اس کی تشنگی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ افضل ملک نے بے اختیار آنکھیں میچیں۔ اس کی نگاہوں کی یہ حسرت ان سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ افضل ملک نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تھے وہ کتنی مشکل سے یہ کر رہی ہے۔ شکریہ، وہ رندی آواز میں کہتی چند پل یوں ہی کھڑی نے دیکھتی رہی۔
शायद इसकी आंखों में लिखे तहरीरें पढ़कर इसे सीने से लगा लेंगी। इन्हें वापस किचन की जानिब देखकर और जख्मी सा हल्का मुस्कुराती दरवाजे की जानिब बढ़ के इब्राहिम सरा से इसे पीठ के पीछे लपका था। कर्ब से गुलाबी होती इसकी आंखों के किनारे इसे मख्फी नहीं रह सकते थे। इसकी ये मुस्कुराहट वह पहचानता था। बेला, इसकी पुकार पर वो मजीद कदमों से चलने लगी। इस वक्त वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। बेला वो तेज कदमों से इसकी जानिब बढ़ता बाजू से इसे थामता रोक चुका था। वो इस वक्त घर की पार्किंग में ही थी। मुझे जाना है इब्राहिम, प्लीज़। रुख दूसरी जानिब मोड़ती वो बेबसी से बोल रही थी। वो लपीच कर इसे आंसू छुपाते देख रहा था। बिना कुछ कहे इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसे मजबूती से खुद में भींच गया। और जो पहले भी करे थे इसका सहारा पाते ही बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। इसके सीने पर सर मारती वो पूरी तरह तड़प रही थी। क्यों? लबों से इस कार्य की सूरत एक शिकवा खारिज हुआ था। वह मजीद मजबूती से खुद में छुपा गया। कितनी तड़प इसकी एक लफ्ज़ में इब्राहिम मलिक का दिल किसी ने मुट्ठियों में रख के मसल दिया। मैं हूँ ना, इसकी कमर सहलाते हुए नरमी से सरगोशी में अपने होने का एहसास दिला रहा था। मैं हूँ ना अपनी बेला के लिए। उसने मजीद वाज़ेह लफ्ज़ में से मौजूदगी से आगाह किया। हाँ, वो था इसके हर दर्द में शरीक। वैसे यूँ घुट घुट कर आंसू अंदर नहीं उतारने देगा। बेला, बेला बस करे हनी। काफ़ी देर इसे साथ लगा इसकी सिसकी सुनने रहने के बाद वो धीरे से अलग करता हुआ बोला। इसे खुद भी अपनी पोजीशन का जल्दी एहसास हो गया था। वो खुद भी तेज़ी से दूर हुई। क्या हुआ? इसका चेहरा हाथों में भरे हुए नरमी से पूछ रहा था। सूजी सूजी गुलाबी आंखें इसके दिल पर क्या सितम कर रही थी वो बताने से कासिर था। कुछ नहीं, सॉरी। और मैं पता नहीं कैसे वो नजरें चुरा कर कहती मेन गेट की जानिब जाने लगी। सिर्फ सॉरी। इसे फिर बाजू से थाम कर अपने मुकाबले करता हुआ शरारत से बोला। तो आप क्या चाह रहे हैं? तगमा इम्तियाज़ दूँ मैं आपको? वो कड़े तेवर लिए इसे तकती अपने अंदाज में लौट आई थी। साथ लगाकर तो आंसू पूछ लेने से ये शख्स इतना फ्री हो रहा था। इसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मेरी शर्ट गीली कर दिया आपने? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से अपनी शर्ट की जानिब इशारा कर रहा था जो सीने के पास से भीग गई थी। बेहुदा ठर गुर्बत की एटीएम मशीन है आप। तो आंसू पोंछ लेकर ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। नई शर्ट दे दूँगी मैं। वैसे भी आंसू से भीगी है, कोई तेज़ाब नहीं डाल दिया मैंने आप पर। इसकी बात समझ जाने पर बस वो खुद ही गुस्से से पैर पटकते उस पर चार हाथ भेजती जाने लगी। जब एक बार इसे अपनी जानिब खींच चुका था। ये आंसू मेरे दिल पर तेज़ाब की मानत ही गिरते हैं। आंखों के किनारे पर मौजूद नमी अंगूठे की मदद साफ करते हुए संजीदगी से बोला। टर्कियों की आला अहद से ताल्लुक़ है आपका? दिल की हालत से परेशान होती अपना सब पूरी ताकत इसकी थोड़ी पर मार कर तेज़ी से गेट से निकल गई। जंगली बिल्ली, ये अपनी पूरी कोशिश करती हैं खुद पर बेवा का टेक लगवाने का। अपनी थोड़ी सलाहकर वो मजलूमियत से आसमान की जानिब तकता हुआ बोला। वो कप केक की सजावट करती ज़ोरों शोर से गाना गा रही थी। इसे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे इस कैफ़े पर काम करते हुए। शुरू के 1 हफ्ते तो बेला रोज़ आती थी। इसे काफ़ी चीज़ों में बेला ने गाइड भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बेला कैफ़े नहीं आ रही थी। कैफ़े के मामलात वो पोगो से कॉल्स पर डील कर लिया करती थी और पोगो यहाँ इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इस वक्त भी वो दरमियाने साइड की टेबल पर चढ़ी अपने काम में मशगूल थी। साथ साथ गाना गाकर काउंटर से दाखिल होते पोगो को सुलगाने का काम भी अंजाम दे रही थी। ये शरीफों की जगह है बीबी, अपना ये पटाडोल कहीं और जाकर पीटो। कभी देखा है हमारे कैफ़े पर किसी को गाते बजाते जमरासन बनने आ गई हो? वो वेटर्स क्वार्टर्स पकड़ाता हुआ और इसके काम को जायजा लेता हुआ बोल रहा था। इसने बाएं झुकी कर इसकी जानिब देखा। बेला का ये मासूम पोगो इसे ज़रा पसंद नहीं था, जो हर वक्त इसका बॉस बनने की कोशिश में लगा रहता था। क्यों तुम यहाँ अपने भारी भरकम 100 मन की आवाज़ के साथ ऑर्डर देते लोगों के कान फाड़ सकते हो, मैं खाना भी नहीं खा सकती। बेला ने मुझे रखा है, मैं बात भी इससे करूँगी, तुम दूर रहो मुझसे। पतंग कर बोलती एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। पोगो ने गुस्से से इस छोटी सी बला की जानिब देखा जो अब टेबल से उतरकर दीवार गैर ओवन की जानिब बढ़ रही थी। इनके कुकिंग एरिया के शेल्फ्स काफ़ी ऊंचाई पर मगरबी तर्ज के बने हुए थे। इस वजह से वह टेबल पर चढ़कर काम करती थी। टेबल पर खड़े होने के बाद ही इसके हाथ कैनवस तक पहुंच पाते थे। ब्लैक और वाइट चेक वाली शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक हिजाब सर पर लपेटे, जो इतना छोटा था सिर्फ इसकी गर्दन तक ही आता था। इसके वजूद की नाइयों को छुपाने से पूरी तरह नाकाम था। इसको नापसंद करने की सबसे बड़ी वजह इसकी ड्रेसिंग ही थी, लेकिन मैं इसे बता नहीं सकता था। बेला बाजी बोलो। वो तान पीस कर बोलता अपनी नज़रों को ज़ावे फेर गया। इसकी बाजी ने इसे अच्छी तरह बताया था कि लड़की चाहे जिस भी लिबास में और जिस भी अंदाज में उसके सामने खड़े उसे अपनी नज़रें नीचे रखनी है। बेकशुदा केक निकाल कर दोबारा सजावट के लिए सेट करते हुए इसे मज़ीद सुलगाने के लिए तेज़ तेज़ गा रही थी।
इसकी जल्दी बनती शक्ल देखकर वो मुस्कुराती आवाज़ में मजीद जोर से गाने लगी। आज बाजी आ जाए, इसका सफाई तो मैं करवा कर आऊँगा। पोगो से पंगा लेती हाफ पैकेट इस छोटी सी लड़की पर एक नज़र डालकर वो बेला से बात करने का मुजस्सिम इरादा बांध रहा था। इस लड़की का जलने देखकर आगे से मजीद सुलगा रहा था। एकदम इसकी आंखों में चमक उभरी, छोटे छोटे कदम उठाता इसकी जानिब आया और खैर महसूस अंदाज में टेबल के पाइप पर जोरदार टक्कर मारी। अगले ही लम्हे वो टेबल इस लड़की के साथ ज़मीन बोस हो चुका था और वो जो पिज़्ज़ा के डो बनाने के लिए मैदा निकाल रही थी इसमें नहा चुकी थी। साथ ही पास रख के पेंटे वेंडे बीज के ऊपर गिरे थे। वो को मनहूस मारे जलील कमीने, अल्लाह मेरी कमर तोड़ दे, इसने मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। औरत की शिद्दत से बर्दाश्त करने की कोशिश करती, उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पा रही थी। अब खड़े क्या हो, उठाओ मुझे। और रोती हुई चीख कर बोली, इसके अंदाज में मुंह बिगाड़ कर गाता। वो प्याले में बचा बाकी खामियाजा भी उसके ऊपर ढेलता। एहतियात से टाइल्स पर पैर रखकर कुकिंग गिरे से ही निकल गया। पोगो वापस आओ, पोगो तुमने गिराया मुझे, वापस आओ। वो बेबसी से रोती से पुकारने लगी। वो वहाँ होता तो इसकी रोती हुई आवाज़ सुन पाता। बेला, तुम्हारे इस मासूम पोगो का तो पिज़्ज़ा बना दूंगी, मनहूस कमीना इंसान। हाय मेरी कमर तोड़ दी। वो मैदे से पूरी तरह नहाई हुई रोती हुई पैर फटक रही थी। ऊपर से गिरने के बाद कमर में दर्द की लहर उठ रही थी जिसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो 14-15 साल की बच्ची थी। हालात ने इसे बड़ा बना दिया था लेकिन थी तो वो भी लड़की और काफ़ी नाजुक सी लड़की। कमर की तकलीफ इसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेला जो अभी ही कैफे आई थी, पिछली जानिब से आने की वजह से वो पिछले कुकिंग एरिया में इसे इस हालत में रोते हुए देखकर सरा से इसकी जानिब आई। फीहा, क्या हुआ, तुम इस तरह कैसे गिर गई? इसका आंसू और मैदे से अटा चेहरा इसे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं इसके सामने बैठती नरमी से इसके चेहरे पर लगा मैदा साफ करने लगी। ऐसे किस तरह गिर गई तुम? मैंने कहा भी था तुमसे जिस चीज़ पर हाथ नहीं जाए तुम पोगो को बुला लेना। इसे सहारा देकर पास रख के सोफे पर बिठाकर इसके हाथ पैर साफ करने लगी। वह जोर जोर से रोती नफी में गर्दन हिला रही थी। पोगो, पोगो, इसे कुछ बताते नहीं देख बेला ने पोगो को आवाज़ें दी। बेला बाजी, आप कब आई? अगले ही पल वो बोतल किचन की तरह हाजिर था। मैदे रंडे में लथड़ी फीहा को देखकर वो हंसी दबाने के चक्कर में सो हो रहा था। फीहा कैसे गिरी पोगो? बेला ने संजीदगी से जानिब देखा। पता नहीं बेला बाजी, मैं तो बाहर था। क्या हुआ, तुम गिर गए? धीरे से कहता मासूम के सारे रिकॉर्ड तोड़ता इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसने टक्कर मारी थी टेबल पर। वो रोती हुई बोली। पोगो ने गड़बड़ा कर बेला की जानिब देखा जो खफकी से इसे ही देख रही थी। पोगो, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अब देखो वो कितना रो रही है। ऑटो, फीहा चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। वो पोगो की जानिब खफकी से देखते नरमी से फीहा को थाम कर उठाने लगी। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, वो रोती हुई बेला साथ लगी। दर्द का सुनकर पोगो ने भी परेशानी से उसे देखा। वो वाकई तकलीफ से रो रही थी। उसे यकदम ही शर्मिंदगी ने आ घेरा। इसका मकसद तो बस हल्का फुल्का मजा चखाना था, इसे तकलीफ देना नहीं। तुम रो नहीं, मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ तुम्हें अभी। नरमी से इसे साथ लगाए बेला प्यार से बोली। पोगो ने इस वक्त को कोसा जब इसे सबक सिखाने के लिए इसने टेबल पर टक्कर मारी थी। न वो टेबल पर टक्कर मारता, न वो लड़की अभी इसकी बाजी की मोहब्बत समेट रही होती। पोगो, रोड क्रॉस जो क्लिनिक है वहाँ जाओ और डॉक्टर को इमरजेंसी में बुला कर लाओ। इसे साथ बने छोटे से कमरे नुमा रेस्ट रूम में ले जाती हुई संजीदगी से पोगो से बोली। कुछ देर में वो डॉक्टर को अपने साथ लिए आ गया था। डॉक्टर से मसाज दे रही थी। कमरे से इसके रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। अपनी गलती का एहसास इसे अब हो रहा था। यकीनन इसे ज़्यादा लगी थी जब वो यूँ रो रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर से पेन किलर वगैरह देने के बाद चली गई तो कमरे में आया जहाँ वो बेला के साथ लगी अब तक रो रही थी। बेला ने खपकी से इसकी जानिब देखा। जवार को कॉल करो, कहो ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेजे, मैं भैया को इसके घर तक ड्रॉप करवा दूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। नहीं, मेरी गलती थी बेला, शुरुआत मैंने की थी पर मुझे पता नहीं था ये इस तरह से मुझे गिरा देगा। तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? वो हाथों की पूरी चाल से साफ करती हुई बोली। पोगो ने हैरानी से इसकी जानिब देखा, फिर मौके से फ़ायदा उठाते जल्दी से बेला के आगे बैठता। कानों को हाथ लगाकर मजलूम शक्ल बनाई ज़ेरे लब सॉरी कहा। तुम फिक्र नहीं करो, यहाँ आराम करो। अभी ड्राइवर आ जाए तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। पहले ठीक हो जाओ फिर काम कर लेना। वो नरमी से कहती पोगो को अपने साथ आने का इशारा करती बाहर निकली। बाजी, जानबूझकर नहीं किया मैंने, सॉरी प्लीज़। बेला की नाराज़गी भला कब बर्दाश्त थी इससे। वो जल्दी से इसके पीछे आया। मुझे नहीं अच्छी लगी ये हरकत पोगो। इसने जो भी किया था तुम्हें इस तरह इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम जानते हो इसकी अम्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। एक दिन अगर इसने वहाँ पैसे नहीं जमा करवाए तो इसकी अम्मी का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा।
वो एक ही बेटी है इनकी, अकेली रहती है वो अपने घर पर। मैं अस्पताल में थी तो मेरी इससे मुलाकात हुई थी और इसी वक्त मैंने इसे अपने पास काम करने को कहा, क्योंकि वो किसी सूरत मेरी मदद लेने को तैयार नहीं थी। अब बताओ अभी इसकी जो हालत है वो कैसे अपने घर जा सकेगी। वो बोल रही थी और वो मुंह खोले से सुन रहा था। 2 हफ्ते पहली बार इस लड़की से हमदर्दी महसूस हुई थी। इसने तो ये सोचा ही नहीं था कि इतनी छोटी लड़की इतनी मैच्योर कैसी थी। वो काम के लिए आई थी तो इसकी क्या मजबूरी थी। मैं माफ़ी मांग लूँगा इससे, वो सर झुकाए शर्मिंदा सा बोल रहा था। किसी को देखकर इसके बारे में सब जज कर लेना कोई समझदारी नहीं है पोगो, खासकर जब तक आप इसके अंदर की अज़ियत से वाकिफ ना हो। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि यहाँ हर किसी को बस तनकीद करके खुद को टार्ज़न की औलाद साबित करने का शौक लाख होता है। अगले इंसान पर क्या गुजरेगी ये तो सोचने भी हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अब आज तुम कैफ़े को देख लो, मैं इसे लेकर अपने घर जा रही हूँ, देख लो कि ना। नरमी से समझा कर इसने इसकी जान देखा। मैं शर्मिंदा से इस बात में कहते नहीं रहा था। गुड, अब वो ठीक कर लो। उसका सर थपक कर प्यार से बोली। इसका ये छोटा बच्चा इसे बहुत अजीज था। इसके चेहरे पर उदासी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में ड्राइवर के आने पर वफिया को लिए घर आ गई थी। रात डिनर के बाद अतहर मलिक के हुक्म पर वह सभी इस वक्त लाउंज में बैठे थे। पिया के मुतालिक इन सबको बताकर इसे गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा चुकी थी। इस वक्त डिनर के बाद सो रही थी। भाई निकाह और उख्ती तो सवार की जिद पर और पिश कुछ हालात हुई जो सादगी से हो गई। घर के 2 बच्चों की खुशी यूं ही बिना किसी हंगामे की हो गई। मैं चाहता हूँ अब हम सवार और शीरी के साथ इब्राहिम और बेला का रिसेप्शन रख लूँ। मेरी चिड़िया को अगर उख्ती पर एतराज़ ना हो तो। नरमी से अपनी बात मुकम्मल करते उन्होंने बेला की जानिब देखकर जो सपाट चेहरे के साथ इनकी जानिब देख रही थी। मैं नहीं चाहती ऐसा, आप शीरी और सवार का रिसेप्शन ज़रूर रखें, लेकिन मेरे बारे में ये ख्यालात नहीं रखे ताया जान। वह संजीदगी से कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। इब्राहिम ने लब भींच कर इसकी पुश्त को देखा। मैं बात करती उसे ताया जान, शीरी धीमी आवाज़ में कहते इसके कमरे की जानिब बढ़ी थी। बेला ये तुम किस तरह बात करके आई हो ताया जान से। वो गुस्से में कहते इसके कमरे में आई जो आराम से बेड पर गिरने किसी अंदाज में लेटी थी। मुझे नहीं करनी इस गरीब तरीन इंसान से शादी। गुर्बत के आखिरी दर्जे के बाद भी कोई दर्जा होता है ना, तो वो शख्स इससे भी नीचे फायज होता। मैं अपनी चहेती बेटी के लिए वो टॉम क्रूज की छठी औलाद और मेरे लिए वो दुनिया से बेजार शख्स ही रह गया है। वो टांगे लटकाए बेड पर लेटी छत को घूरती हुई बोल रही थी। जितनी तेज़ी से इसकी ज़बान चल रही थी इतनी ही तेज़ी से इसके पैर भी हिल रहे थे। खुदा का खौफ करो बेला, उन्होंने बिजनेस सेट करना है, इंशाल्लाह जल्द कर भी लेंगे। और तुम कैसी बदगुमानी भरी बातें कर रही हो। वो तो इसकी ज़ुबान के जौहर पर कांप भी गई थी। इसके ये नादर ख्यालात बाहर खड़े इस शख्स ने भी सुने थे। सबसे तनी रगों के साथ गुस्सा जब्त कर जिसने झटके से दरवाज़ा खोला। बाहर जाए शीरी, मुझे बेला से बात करनी है। इसकी सर्द आवाज़ पर वो दोनों ही उछल पड़े। इब्राहिम भाई, मैं बात कर रही हूँ इससे। ये शीरी ने गड़बड़ा कर इसकी जानिब देखकर, जिसकी नज़रें इस वक्त बेला पर ही टिकी थी। ये लड़की से जज करके रख देती थी। आप जाएं। वो सबसे जबड़े पीते शीरे से बोला। वो बेला को इल्तिजाई नज़रों से देखती बाहर निकल गई। आपको नहीं करनी रुखसती, आप ना करें, लेकिन इन फजूलियात का क्या जवाब बनता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं मोहब्बत में भी बदतमीज़ी का कायल नहीं हूँ। तब तो सरखौती निकाह इस पर गाढ़े व खासी तहम्मुल से बात कर रहा था। ये फजूलियात नहीं, हकीकत है। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वो तंग कर बोलती रुख फेर गई। हकीकत? मैं बताऊँ आपको क्या है हकीकत। सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेता हुआ अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। आपका और मेरा रिश्ता हकीकत है जिसे आप चाह कर भी नहीं बदल सकती। अभी नहीं, 10 साल बाद सही, लेकिन आना आपको मेरे पास ही है। ये है हकीकत। इसकी गिरफ्त में आज फिर वही सख्त थी जो 6 महीने पहले वो करती थी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप पर। खुद पापा को मना कर दूंगा मैं रुखसती के लिए। रहें आप अपनी झूठी अना के कैद में। मुझे कब्र में मुब्तला करके आपको सुकून मिलता है तो आप पुरसकून ही रहे। झटके से छोड़ता हुआ कमरे से निकल गया। ठहर के इंसान, कभी हाँ कभी नहीं करूँगी। अपने बाजू से हिलाते हुए तनफ्फुर से इसके चौड़े पुश्त पर नजरें जमाए बोली थी। रात काफ़ी देर से वह कमरे में दाखिल हुई तो अंधेरे में डूबा कमरा देखकर सुकून की सांस ली। मतलब वह सो गया था। इब्राहिम के जाने के बाद काफ़ी देर तक बेला को समझाती रहने के बाद वो जानबूझकर काफ़ी देर तक अतर मलिक के साथ बैठी इधर उधर की बातें करती रही थी। जब अच्छी तरह इसके सो जाने का यकीन हो गया तो वह कमरे में आई थी। वो बाजू आंखों पर रख के बेड पर दराज था। कमरे में गूंजती भारी सांसें इसके सो जाने का यकीन पुख्ता कर रही थी। वो दबे कदमों चलती बढ़ के दूसरे किनारे पर दराज हो गई। अभी से लेटे कुछ सेकंड से ही गुजरे थे जब पीछे से अपनी मजबूत हिसार में कैद कर गया था और लरसती आंखें मीच गई।
मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही हैं आप? इसकी सरगोशी नुमा अंदाज बुरी थी। लहजे की संजीदगी से ही जाहिर था कि वो इसका इंतजार कर रहा था। इसे अपनी चालाकी पर खूब सा रोना आ रहा था। वह वाकई सुबह से इसे छुपने की कोशिश में कभी सितार बेगम तो कभी अतहर मलिक का सहारा ले रही थी। इसे क्या पता था वो इतना नोट कर रहा है। कुछ पूछ रहा हूँ शीरीन, गिरफ्त हल्की सी मजबूत करता है इसका रुख अपनी जानिब करते हुए संजीदा लहजे में बोला। तुम तुम मुझे डरा रहे हो? आंखें मीचती धीरे से बोली। इसके नाक की उंगलियों के पोरों से छूता हुआ इसकी आवाज़ मुअत्तल कर रहा था। क्यों डर रही हैं मुझसे आप? इसकी नाक पर पेशानी रगड़ता हुआ संजीदगी से पूछ रहा था। प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। इतनी गुर्बत बहुत तड़प उठी थी। उसकी गर्म सांसें अपने कानों की लुबर महसूस करती बदतमीजी सी हो रही थी। मेडिसिन ली थी रात की? इसकी रोंसी सूरत देखकर नरमी से इसे कुछ दूर करते सवाल किया। वो लब काटते इस बात में जहरीला आ गई। सारी मेडिसिन टाइम पर लेनी है। किसी भी किस्म की कोताही की सूरत में मैं बुरा पेश आऊँगा शीरी। वह उसके लहजे की सख्ती की वजह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ये सख्ती से नागवार गुजर रही थी। इससे कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। वह आंसू प्रीति से दूर होने की कोशिश करने लगी। वह बगौर इसके तासरात देख रहा था। लरजते पलकों तले छुपे आंसू देखते हुए कुछ गिरफ्त कुछ नरम करते हुए इसे करीब कर गया। सो जाएं आप। इसका सर अपने सीने पर रखकर हौले हौले थपकने लगा। नहीं, मैं इस तरह नहीं सो सकती। वो भराई आवाज़ में कहती हुई पीछे हटने लगी। इसकी मजबूत गिरफ्त से निकलना इसके बस की बात नहीं थी। मुझे मजीद पेशकदमी पर मजबूर नहीं करें शीरी। सुकून से सो जाए। मुसलसल उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करते देख वो संजीदगी से बोला। उसकी धमकी का खातिर खासर हुआ था। वह सहम कर आंखें मूंद गई थी। बेला, मैं आ सकती हूँ? मुझे सोने की तैयारी कर रही थी। सीता बेगम की आवाज़ पर हैरत से उनकी जानी मुड़ी। जी आ जाए। वो खुशगवार हैरत से इन्हें अपने कमरे में देख रही थी। बैठो। इसका हाथ थाम कर बेड पर बिठाते हुए हौन बिन के साथ ही बैठ गई। मैं कुछ मांगूँ तो मुझे दोगी बेला? वो नरमी से बोली। इसे तो इनके अपने कमरे में मौजूदगी का ही यकीन नहीं हो रहा था। झट से सरस बात में हिला गई। मैं लगी लिपटी कोई बात नहीं करूँगी बेला। तुम चारों ही मेरे बच्चे हो और हर माँ की तरह मेरे भी अपने बच्चों की शादी के अरमान है। तुम्हारे और इब्राहिम के रिश्ते के मुतल्लिक सुनने के बाद हैरत मुझे भी हुई थी, लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि मैं इब्राहिम को जानती हूँ। मेरा बेटा है। इसकी आंखों के रंग में पढ़ सकती हूँ बेला। बहुत मोहब्बत करता है वह तुमसे। मैं जवार की शादी से पहले इब्राहिम की शादी करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है। मैं चाहती हूँ लोगों को मेरी बड़ी बहू के मुतल्लिक पहले पता चले। शीरीन और जवार से पहले मैं तुम दोनों की एक बहुत बड़ी रिसेप्शन देना चाहती हूँ। मेरी बात का मान रख लोगी बेला? इनकी बात पर इसके अंदर छन से कोई टूटा था जिन्होंने आज तक किसी बेटे का प्यार नहीं दिया था। इसे बहू कितने फ़ख्र से कह रही थी इब्राहिम के हवाले से। वह जहाँ मौजूद थी वो इनका बेटा था, लेकिन अपनी बेटी को वो बहू कह रही थी। वह इन्हें बताना चाहती थी कि इनकी झिझक, इनकी बेतनाई इसे कितनी तकलीफ देती है, लेकिन हमेशा की तरह वो मुस्कुराकर सने आंसू अंदर उतार गई। आप यहाँ मेरी नहीं इब्राहिम वाले की माँ बनकर आई हैं, अपने बेटे की मोहब्बत को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश में। मैं चाह कर भी आपको इनकार नहीं कर सकती मिसेस अफजल। दिन बता दीजिएगा मुझे रुखसती की। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाथरूम में बंद हो चुकी थी। वह गहरी सांस लेती इसके कमरे से निकल गई। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।